Hello everyone, welcome to the class Bio with Alifa. Today I am going to explain the last topic of the chapter life process. Topic name is excretion. Excretion is very important for our life or to maintain life process. क्योंकि अगर हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो वो फेटाल हो जाएंगे, शायद डेथ भी हो सकती है. So it is defined as loss of waste products from the body of plants or from the body of animals is called as excretion. ऐसा नहीं है कि excretion सिर्फ animals में ही होता है, लेकिन ये plants में भी होता है क्योंकि ये बहुत important part है to maintain life process. In case of unicellular and in case of multicellular animals, excretion is performed by these animals in different ways. Of single cell organism, there is no any organ to remove waste products. As in case of multicellular organism, there is a organ called kidney, or we can say liver, or we can say skin. These all organ participate in excretion. But in case of unicellular organism, they are made up of only single cell, so the mode of excretion is different. It is through general body surface. In case of unicellular organism like amoeba, it takes place through general body surface. And the process name is called as diffusion. Through diffusion, they excrete out waste products out from the body. In case of earthworm, excretory organ is called nephridia, which is a tube-shaped organ, and sometimes it takes place through moist skin. क्योंकि earthworm कहाँ रहता है? Soil में रहता है, तो ये moist skin के through भी होगा. In case of human being, it is through nephron or through kidney. Through skin also, we remove sweat also, and it takes place through skin. And the most important organ is kidney. Now, the next topic is excretion in humans. In case of the human being, carbon dioxide, urea, sweat, these all are the waste products. Excretory organ for carbon dioxide is lungs. As we have studied in the topic respiration, that through exchange of gases, CO2 comes out of the body and O2 diffuses inside the body. Through skin, sweat, and through kidney, urea pass out from the body. Now, what are the different organs involved in excretion? In case of the human being, excretory system is made up of 2 kidney, 2 ureters, 1 urinary bladder, and 1 urethra. In case of the kidney, here the filtration of blood takes place. किडनी में क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, जिससे यूरिन फॉर्म होती है ब्लड के फिल्टर होने के बाद. क्योंकि ब्लड में क्या है? वाटर है, अमीनो एसिड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स हैं, यूरिया है, अमोनिया है. ये सभी क्या है? किडनी के थ्रू फिल्टर आउट होंगे और यूरेटर्स में आ जाएंगे. यूरेटर में यूरिन होगी जो कि ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद फॉर्म होगी. यूरेटर से ब्लैडर में यूरिन स्टोर होगी टेम्परेरी बेसिस पर. जब अर्ज होगी कि हमें यूरिन पास आउट करनी है, देन इट कम्स आउट थ्रू यूरेथ्रा. नाउ वी विल स्टडी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्लाइटली इन डिटेल. दैट in kidney there are millions of nephrons. So structural and functional unit of kidney is nephron. हमारी किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है. और नेफ्रॉन जो हैं वो वोमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल वाले पार्ट से मिलकर बने हैं. अगर हम डायग्राम को रफली ड्रॉ करें तो इस तरीके से कुछ होगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर. This is the Bowman capsule and this is the tubular part of the nephron. Here blood capillaries are present. These blood capillaries are called as glomerulus.
ग्लोमेरुलस, इन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वुमेन कैप्सूल एंड दिस इज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. नाउ renal artery will bring the blood into the woman capsule for filtration. renal artery जो है, renal means kidney, किडनी की एक आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कहाँ लाएगी, किडनीज में लेकर आएगी. किडनी के कौन से वाले पार्ट में लेकर आएगी, यहाँ वुमेन कैप्सूल वाले पार्ट में लेकर आएगी. यहाँ नेफ्रॉन के थ्रू फिल्ट्रेशन, यानी वुमेन कैप्सूल में क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, जिसमें जिस इम्प्योर ब्लड में क्या क्या होगा, सॉल्ट्स होंगे, वाटर होगा, अमीनो एसिड्स होंगे, ग्लूकोज होगा, यूरिया होगा, जो कि ट्यूबुलर पार्ट में आ जाएंगे. फिर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जो कि अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है जो कि इम्पॉर्टेंट है, अगर वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे तो हम लोग कैसे हो जाएंगे, मतलब इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलने चाहिए, इसलिए इनका ट्यूबुलर पार्ट जो है वुमेन कैप्सूल का, उसमें क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा. यहाँ वुमेन कैप्सूल में क्या होगा, रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आएगी जो कि इम्प्योर होगा, इम्प्योर ब्लड. उसके बाद यहाँ फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, ट्यूबुलर पार्ट में आ जाएगा. इस ट्यूबुलर पार्ट में रीएब्जॉर्प्शन होगा इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस का, जो ब्लड के साथ या यूरिन के साथ फिल्टर आउट हो जाएंगे. फिर यहाँ पर क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट होंगी, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट होंगी. इन कलेक्टिंग डक्ट्स का फंक्शन क्या है, यूरिन को क्या करना, कलेक्ट करना, और जो अनइम्पॉर्टेंट सब्सटेंस हैं उनको सीक्रेट आउट करना, आउट फ्रॉम द बॉडी से बाहर निकालने के लिए. फिर इसके बाद ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं ये यहाँ पर यूरेटर से कनेक्टेड होंगी. यूरेटर से ये यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगी, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है और यूरिनरी ब्लैडर से ही पास आउट हो जाएगा. अब हम ये वुमेन कैप्सूल मिलियंस ऑफ नंबर में किडनी में प्रेजेंट हैं, ऐसा नहीं कि एक ही वुमेन कैप्सूल सिर्फ यूरेटर से कनेक्टेड होगा. यहाँ पर मिलियंस ऑफ वुमेन कैप्सूल हैं, या फिर हम कहें नेफ्रॉन है जो कि यूरेटर से कनेक्टेड होंगे. यानी कि कलेक्टिंग डक्ट्स का फंक्शन क्या है, यूरिन को एक जगह कलेक्ट करना और उसके बाद ये यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगी. तो रीनल आर्टरी ब्रिंग्स ब्लड इनटू द वुमेन कैप्सूल फॉर फिल्ट्रेशन, जिसमें सॉल्ट्स होंगे, वाटर होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे, ग्लूकोज होंगे और यूरिया होगा. ये सब ट्यूबुलर पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलस में आ जाएंगे. फिर इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि इस ट्यूबुलर पार्ट के साथ साथ कैपिलरीज में मूव करेंगी ब्लड कैपिलरीज. तो ये कैपिलरीज का फंक्शन होगा कि जो यहाँ पर ट्यूबुलर पार्ट में इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस फिल्टर आउट हो गए हैं उनको रीएब्जॉर्ब करना. यूरिया और वाटर ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाएंगे. लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट होंगी. मैंने आपको भी वुमेन कैप्सूल के डायग्राम में बताया कि वुमेन कैप्सूल है, ट्यूबुलर पार्ट से, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट्स हैं. तो यूरिन कहाँ आ जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट्स में आ जाएगी, जहाँ पर अनइम्पॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक यूरिया, अमोनिया और वाटर का सिक्रेशन होगा. आपको एक चीज़ और बता दूँ, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी होगा. एक्सेस ऑफ वाटर हमारी बॉडी से रिमूव ना हो जाए तो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस के साथ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड के साथ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी होगा. ना कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कहाँ आएगी, यूरेटर में आएगी. यूरिनरी ब्लैडर में सब कुछ टाइम के लिए स्टोर होगी और यूरेथ्रा से ही इट विल कम आउट फ्रॉम द बॉडी. नाउ विद द हेल्प ऑफ रीनल वेन, जहाँ रीनल आर्टरी से ब्लड एक तरफ से आ रहा था, ये रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी जो कि ब्लड को क्या है लेकर आ रही है. यहाँ पर रीनल आर्टरी फिर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और ये कैपिलरीज आगे चल के यहाँ पर ट्यूब्यूल के चारों तरफ चलती रहती हैं रीएब्जॉर्प्शन के लिए. वहीं यहाँ ये कैपिलरीज फिर से रीनल वेन में कन्वर्ट हो जाती हैं. रीनल वेन जो प्योर ब्लड है उसको लेकर वापस कहाँ, बॉडी में चला जाता है प्योर ब्लड. स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन आर, फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज सीक्रेशन. फिल्ट्रेशन होगा वुमेन कैप्सूल में,
ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। इसके बाद और ब्लड कौन सा प्योर ब्लड कौन लेकर आ रहा है, रीनल आर्टरी। फिर रीएब्जॉर्प्शन होगा उन्हीं कैपिलरीज के थ्रू जो कि ट्यूब्यूल के चारों तरफ क्या करेंगी, रन करेंगी। फिर सीक्रेशन होगा कलेक्टिंग डक्ट्स में अनइम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस का, ठीक है। और रीनल वेन के थ्रू जो प्योर ब्लड है वो बॉडी में क्या होगा, वापस चला जाएगा। तो देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। नाउ व्हाट इज रीनल और किडनी फेलियर। रीनल किडनी को ही बोलते हैं। ये क्या है, किडनी का फंक्शन है ब्लड को क्या करना, फिल्टर करना। लेकिन अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, किडनी फंक्शन करना स्टॉप कर दे और ब्लड का फिल्ट्रेशन स्टॉप हो जाए तो उसे किडनी फेलियर बोलते हैं। जिससे कि टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में लगे, यूरिया, अमोनिया, कुछ सॉल्ट जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो क्या है, एक्यूमुलेट होने लगते हैं किडनी वाले पार्ट में। जब किडनी फिल्टर ही नहीं कर रही तो किडनी में और ब्लड में सब कुछ क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे किडनी फेल हो जाएंगी। या तो किडनी इसके लिए क्या करी जाती है, ट्रांसप्लांट करी जाती है, या फिर डायलिसिस करा जाता है किडनी फेलियर से बचने के लिए। तो डायलिसिस क्या है, जैसे हमारी किडनी फंक्शन करती है वैसे ही मशीन के थ्रू आर्टिफिशियली इस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। तो जो इम्प्योर ब्लड है पर्सन का, उसे क्लीन किया जाता है आर्टिफिशियल मशीन के थ्रू, जो इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। इसमें यूरिया को सेपरेट आउट कर दिया जाता है ब्लड से। यूरिया, अमोनिया जो अनइम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं उन सभी को क्या है, बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, ये मशीन बिल्कुल हमारे किडनी की तरह ही फंक्शन करती है। मशीन में एक टैंक होता है जिसमें ग्लूकोज, वाटर और इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और वो कवर होता है किससे, सेलुलोज मेम्ब्रेन से, राइट। सेलुलोज एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो ब्लड को फिल्टर करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इस टैंक में ग्लूकोज, वाटर, इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स क्यों प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड की तरह, जैसे कि एक प्रेशर दोनों तरफ हमारी बॉडी में और उस टैंक में मेंटेन रहे, क्योंकि हमारी बॉडी से इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस टैंक में ना आ पाए। क्योंकि ऑस्मोसिस ऑफ डिफ्यूज़न आप मेरे वीडियो में एक बार देखिएगा, 9th क्लास का वीडियो है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न पे पढ़िएगा। ऑस्मोसिस में जो फ्लो होता है सॉल्वेंट का, वो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियली जो है आर्टरी से एक पाइप को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ब्लड जहाँ से आता है दूसरी तरफ से वहीं, जैसे किडनी फंक्शन कर रही है रीनल आर्टरी और रीनल वेन, वैसे आर्टिफिशियली रीनल आर्टरी और रीनल वेन भी बनाई जाती हैं टू परफॉर्म डायलिसिस। इन केस ऑफ द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कैसे होता है प्लांट्स में एक्सक्रीशन, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वाटर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, और ऑक्सीजन निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बारे में हम पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में जब होता है, फोटोसिंथेसिस जब होता है तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। वहीं रात को प्लांट क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, तब क्या करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो एट डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट गैसेज आर excretory products of the plants, like CO2 during night and O2 during day, and water in the form of gases के फॉर्म में पानी कब निकलता है, थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर के फॉर्म में प्लांट्स क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ट्रांसपिरेशन पुल। ये डिटेल में नहीं बताऊंगी, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो प्लांट जो जड़ें हैं वो पानी को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे। एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है जब ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी हमारे प्लांट से ऊपर गैसेस के फॉर्म में निकल जाता है। वहीं जड़ें क्या करती हैं, उसी अमाउंट में पानी को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। और ये प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन, और वी कैन से टू प्रोवाइड दैट कूलिंग इफेक्ट, प्लांट को क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। ट्रांसपिरेशन में वाटर गैसेस फॉर्म में रिमूव होता है
और दूसरा जो है वो प्लांट्स में गटेशन के थ्रू पानी रिमूव होता है, जिसमें पानी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रिमूव होता है। आप देखते हैं मॉर्निंग में कभी कभी हम सनड्यू गटेशन से जो पानी लीव्स के टिप पर आता है उसे हम सनड्यू समझ लेते हैं, हम उसे ओस समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वो गटेशन की वजह से भी पानी जो है पत्तों की टिप पर प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ अ मोड ऑफ एक्सक्रीशन, गटेशन न। इसके अलावा गम्स, रेजन्स जो प्लांट एक्सक्रीट आउट करते हैं और या फिर सीक्रीट करते हैं, ये भी क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स, येलो लीव्स, फॉलिंग ऑफ राइप फ्रूट्स, ये सभी क्या है, प्लांट्स के मोड ऑफ एक्सक्रीशन है। जब कोई चीज़ पक जाती है, लीव्स येलो हो जाती हैं, तो प्लांट्स से वो क्या करती हैं, गिरना शुरू हो जाती हैं, एंड इट इज़ अ मोड ऑफ एक्सक्रीशन। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर।